basically seed quality, what is the seed quality concept, what are the seed quality parameters, and what are those methodology which we used to follow in seed testing laboratory for testing the seed quality parameters, right? So first I'll discuss about in this lecture, today's lecture, I'll discuss about the what is seed technology, then what is seed, what is seed actually, according to botany and according to agriculture also. So how you consider this seed, how you will define seed, and then what are the types of seed different, and what are the structures of seed, like monocot seed ka structure kya hota hai, and dicot seed ka structure kya hota hai. Then we'll see the different classes of seed, right? So in different classes of seed, we'll see that the generation system of seed multiplication we will see, and then we will see the seed quality concept, like seed, what are those seed quality parameters which we have to seek very particularly in, if you are going for seed production and if you are buying a quality seed. See, so based on the seed quality parameter, you will come to know that whether it is a high quality seed or whether it is a poor quality seed. Okay. So we will see all those things, and some historical points will also cover, because some history related to seed testing we will see in this lecture. Okay. And then what are the seed quality testing laboratory, where it is, where is the national one, where is the state one, that we will discuss. And individually we will discuss the methodology of testing seed quality parameters. Okay. So first we will see from the next class I'll try to schedule my lecture on Google Meet, because here we are having time limitation, only 50 minutes are there now. It's very difficult to complete, so I'll try to um, carry out from this Google Meet. Okay. So first, we'll see what is seed technology. See, seed technology is not a single discipline; it is an interdisciplinary science, which where you will come to know the role of plant breeders, then agronomist, soil scientist, then physiologist, then agriculture engineering people. The role of agriculture engineering people will also you will come to know if you will closely study seed technology. Then the seed pathologist role is also there. Seed entomologist also play important role in seed technology. When you will go for seed production now, you will see a role of every discipline, and then you will find that it is a seed technology is essentially an interdisciplinary science. So in broader sense, when we define seed technology, it includes the development of superior crop plant varieties, which includes the maintenance, breeding, and their evaluation, the evaluation and release of variety, and then the seed production of released varieties, and then we process the seed, and then we, after processing, we store the seed. Store, if store we store the seed, before storage we test the seed, or before marketing we test the quality of seed, and the seed certification process is followed for quality seed production. Then the strict quality regulation will be followed in case of seed production, and then you have to follow a good marketing channel and distribution system. And in any, if you have to know any science behind this seed physiology and seed biochemistry and seed biotechnology, then you will have to know the basic principles and basic mechanism, right? So in agriculture science, in broader sense, seed technology includes all these things, but in narrow sense, seed technology comprises a technique of seed production, then the processing, seed storage, then seed certification, seed testing, seed marketing and distribution, and any other related topics or research which you can carry related to seed. So in narrower sense, you can define seed technology differently, and when we talk about seed technology in broader sense, we will include all those things which comes under this. Okay. So we
If I ask what is seed, so someone will define seed is a fertilized mature ovule. Yes, you are very right. Some will define like it is any propagating material which we use for growing. So you are also right. Why? Because one person is defining seed in botanical sense or in true sense, which we can call it botanical seed, and another person is defining it as a propagating material. In agriculture point of view, you can define it as any propagating material. So if I ask, please define a seed, so botanically you can define it as seed is a fertilized, matured ovule of a flowering plant, angiospermic plant, which contains three important things. Okay, the first one is embryo, the second one is protective layer, that is seed coat or testa, and the third one is the storage, food storage reserve. Third one is endosperm. So it provides nutrition to the growing embryo. So three important component of a botanical seed are there: embryo, protective covering, seed coat, and endosperm, food reserves. And if I say define seed in agriculture, how you will define? Then it is a according to agriculture, or in agriculture point of view, if I say seed is any propagating part of plant which includes seeds, seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, and other vegetatively propagated materials which are used for sowing or planting or growing a new plant or new crop. कोई भी ऐसा हो सकता है। अगर आप बोटैनिकली डिफाइन करोगे तो उसमें 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स आते हैं। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर में आप अगर सीड को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको पता है, आप लोग एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो सैपलिंग्स होते हैं और रूट होते हैं, कटिंग्स होते हैं, राइज़ोम्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, क्लोव्स होते हैं, ये सारे क्या हैं? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। उसको आप लगा करके एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हो। So in agriculture, we say all these parts are seed. ठीक है? So when we see the structure of monocot and dicot seed, here you can see the structure of monocot seed. In monocot seed, three important things are there: embryo, then seed coat, and then endosperm. ठीक है? See, embryo is the miniature plant. मिनिएचर प्लांट मीन्स जहां से एक नया प्लांट इमर्ज होता है। ठीक है? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मेज सीड वेयर you can see the outer layer is the fruit wall, or you can say the seed coat. So it is also called as pericarp. In case of this monocot, I mean Graminy family, the seed coats are fused with the fruit wall. ठीक है? सीड कोट जो होता है, ये बाहर वाला जो लेयर होता है वो फ्रूट वॉल से अटैच होता है और वो फ्यूज्ड हो जाता है, तो जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद जो अंदर का लेयर होता है वो होता है एंडोस्पर्म। ये इसमें फूड रिजर्व्स होते हैं स्टोर्ड। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट होता है दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है? सो दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ मिनिएचर प्लांट। इट इट इंडिकेट्स अ स्मॉल प्लांट। ठीक है? सो when you will look closely to the this maize seed, you will see that the outer layer is the pericarp or seed coat. ठीक है? जिसे हम फ्रूट कोट बोलते हैं, फ्रूट वॉल बोलते हैं, जो फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज होकर के एक पेरिकार्प फॉर्म करता है। ठीक है? उसके बाद एक आता है एक पतला सा लेयर जिसको बोलते हैं अल्यूरोन लेयर। तो ये अल्यूरोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। ठीक है? अल्यूरोन लेयर किसका पार्ट होता है? एंडोस्पर्म का। और ये आपका ये जो मेज का सीड है इसका एंडोस्पर्म है। अब ये जो दूसरा पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है, ये एम्ब्रियो का पार्ट है मेज में। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, ये वाला डायग्राम में ये मेज है, एम्ब्रियो पार्ट है, ये यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का पार्ट है। इस एम्ब्रियो पार्ट में एक स्कूटेलम होता है। तो स्कूटेलम होता है ये मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलेडॉन। मोनोकॉट का मतलब है जिसमें कि एक कॉटिलेडॉन होगा।
डाइकॉट का मतलब है जहाँ पे कि 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है? तो हमारा जो मोनोकॉट सीड है, जैसे मेज़ का मैं यहाँ पे फिगर दिखा रही हूँ, तो इसमें ये कॉटिलेडॉन सिंगल होता है यहाँ पे। जब आप मेज़ को खाते होंगे तो आप देखते होंगे एक छोटा-सा व्हाइट सा पार्ट निकलता है। सो एम्ब्रियो का पार्ट होता है वहाँ पे। वहाँ पे जो टॉप पोज़ीशन पे होता है वो स्कुटेलम होता है। वहाँ पे आप एम्ब्रियो के पार्ट में ही आप देखोगे एक कोलियोप्टाइल होता है, कोलियोराइज़ा होता है और प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। तो जो कोलियोप्टाइल पार्ट होता है ये प्लूम्यूल को कवर करता है, ठीक है? और जो कोलियोराइज़ा होता है वो रेडिकल को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? रेडिकल के जस्ट ऊपर होता है। तो ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है मोनोकॉट सीड में। और सीड कोट का रोल क्या है? सीड कोट का रोल क्या है? इट विल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, क्योंकि ये इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड कोट क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है सीड का। सो इट प्रोटेक्ट्स द प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म और कॉटिलेडॉन क्या होता है? ये स्टोर करता है फूड को, ये फूड को स्टोर करता है। और जब एम्ब्रियो ग्रो करता है इम्बाइब वाटर इम्बाइब करने के बाद, तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? और ये जो अल्यूरोन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, अल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि अपॉन इम्बाइबिशन their activity will increase, and due to their increased activity the metabolic processes will be fastened, and metabolic processes speed up होने की वजह से germination का process speed up होता है, ठीक है? So like that germination process begins. So when we see the structure of dicot seed, it is somewhat different from the monocot seed, right? So in this, it is a structure of bean seed where in this photograph you can see easily. So in this monocot seed, only one cotyledon is present, and in case of dicot seed, there is two cotyledon. The one is this, and the second one is this, right? So when you see the structure of dicot seed, you will see the radical white part. You can here also you can see this radical root. So when you soak the seed in water, the first which part will come out first? द रेडिकल पार्ट, राइट? रूट पहले निकलता है। तो वो जो रेडिकल पार्ट होता है जिससे कि रूट निकलता है वो पहले वाटर इम्बाइब करने पे रेडिकल निकलता है, तो ये आपका फ्यूचर रूट बनाता है। और यहाँ से जो निकलता है ये आपका प्लूम्यूल होता है जिससे कि आपका स्टेम और लीव्स बनता है। तो यहाँ पे डाइकॉट का एम्ब्रियो जो होता है, दो कॉटिलेडॉन इसमें होते हैं, सीड कोट होता है आउटर लेयर, और रेडिकल से रूट निकलता है, प्लूमल से शूट और लीव्स निकलते हैं। और यहाँ पे एपिकोटाइल होता है और ये हाइपोकोटाइल होता है। In later slides I'll show which is one is the hypocotyl and which one is the epicotyl, right? See, so this is the germinating seed where you can see this is the first foliage leaf, first true leaves we can see, we can say is it is the first true leaves, जो कि पहली पत्ती निकलती है, लीव्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रू लीव्स। तो जो पहला रेडिकल इमर्ज होता है ना, तो ये इससे रूट बना। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। और यहाँ से जो ऊपर का पॉइंट होता है कॉटिलेडॉन के अटैचमेंट्स के, ये कॉटिलेडॉन से अटैच है यहाँ पे ये पॉइंट, तो इसके ऊपर जो पार्ट्स स्टेम और लीव्स जो बनाते हैं इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो रेडिकल जहाँ से निकलता है वो उसको नीचे वाले पार्ट को, कॉटिलेडॉन से नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल हम लोग बोलते हैं, ठीक है? सो दीज टू हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लांट स्टेम्स। आप यहाँ पे देखो, यू कैन सी दिस सीडलिंग ऑफ, यहाँ पे आप देखो ये these two cotyledons are there. So when seedling will grow, these cotyledon will separate out, ठीक है? और ये रूट आपका तो अंडरग्राउंड हो जाता है, अंडर ग्राउंड के अंदर होता है। और ये जो एक्सटेंशन होता है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये जो अपर कॉटिलेडॉन है, कॉटिलेडॉन से नीचे के पार्ट को हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं और कॉटिलेडॉन से ऊपर के पार्ट को
एपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है? और ये आपका ट्रू लीव्स हो गया। तो कॉटिलीडॉन का काम क्या है? जब तक कि आपका सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट ना हो, ये क्या करता है? ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? और हाइपोकोटाइल का जो पार्ट है आपका स्टेम बनाता है और एपिकोटाइल का पार्ट भी आपका स्टेम बनाता है, ठीक है? और एपिकोटाइल के आगे से ही आपका ट्रू लीव्स निकलता है। So this is the basic structure of monocot and dicot seed. So now we will see the difference between seed and grain. So here, if I say seed, it means it is a scientifically produced with scientific technology, with scientific techniques. ठीक है? और ग्रेन कहने का मतलब है कि वो सीड जो कि हम फार्मर जनरली उसको सीड बोल रहे हैं, बट है वो ग्रेन, ठीक है? उसको यूज कर रहे हैं एज अ सीड। तो एक उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं लगे हैं, ठीक है? तो वो सीड जो प्रोडक्शन हो रहा है एक साइंटिफिक तरीके से, और वो सीड जो कि साइंटिफिक तरीके से नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, बट उससे हम ग्रेन है और उसको सीड की तरह यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वी विल सी। सो फर्स्ट, इफ वी से सीड, इट इज अ रिजल्ट ऑफ वेल प्लांट सीड प्रोग्राम। ऑब्वियसली हम लोग सीड प्रोडक्शन करते हैं तो एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। एक उसका कब सोइंग होगी, उसके फील्ड की प्रिपरेशन है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस पूरे रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करते हैं। और फिर उसके बाद फील्ड इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं, और जो सीड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो उसको पूरे फॉलो करते हुए हम फिर उसके बाद लास्ट में जो हार्वेस्टेड मटेरियल होता है उसको फिर हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये बहुत वेल प्लान्ड होता है। वेल प्लान्ड करके तब जाके हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? तो सीड जो है ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं होता। बट ग्रेन के केस में क्या होता है? ग्रेन के केस में हमें बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं, लाइक सर्टिफिकेशन हमें नहीं कराना पड़ता। हमें वहां पे सोर्स का जरूरी नहीं होता कि हम एक अच्छा सोर्स यूज करें, ठीक है? सो ग्रेन प्रोडक्शन में ये सारी चीजें यहाँ पे वेल प्लान्ड सीड प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है। फिर है कि आपका सीड जो है उसमें एक साइंटिफिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कौन सा वैरायटी आप लगाना चाह रहे हो, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, उसकी स्टोरेज कैसी होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज हम कंसीडर करते हैं इसमें, बट ग्रेन के प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, जरूरी नहीं होता। ये आप अगर कोई वैरायटी का सीड प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहां पे आपको पता होता है कि पेडिग्री क्या है, आई मीन कि आपने अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो उसके पेरेंटल लाइंस क्या है, और अगर आप नॉर्मल वैरायटी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन-सा सीड आपने यूज़ किया। लाइक अगर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने ब्रीडर सीड यूज़ किया कि नहीं किया। सो दीज़ पेडिग्री यू हैव idea when you go for seed production, but in case of grain production you don't bother about these things, ठीक है? So during production you have to seed production you have to see whether any plant is diseased or any weeds are present in your field. So you have to just maintain the quality of your seed, right? So you have to rogue out the off type plants or diseased plant or weed plants or any other plants which is not desirable in your field. तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो ये सीड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे देखो आप जो नॉर्मल ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं वो उस चीज़ को बोदर नहीं करते, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते उतना। तो यहाँ पे हमारा टाइमली वीडिंग हुआ नहीं हुआ, या फिर आपका इंटरक्रॉपिंग है क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते, बट वही सीड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे जो सीड हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम प्रोसेस भी करते हैं, क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए, फिर उसको ट्रीट करते हैं, फिर पैकेजिंग करके तब उसके बाद उसको हम लोग मार्केटिंग करते हैं। बट ग्रेन प्रोडक्शन के केस में वैसा नहीं होता। ग्रेन हम सिंपली मैनुअली क्लीन करते हैं, घर में क्लीन कर लिया, प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? उसे प्रोसेस थ्रू जो प्रॉपर चैनल जो प्रोसेसिंग जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। घर में लोग लेबर लगा के क्लीन कर लेते हैं, और uh, know that seed production is supervised by someone, right? हमेशा अगर एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई भी सीड प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको सुपर क्लोजली सुपरवाइज करता है,
और जहाँ पे हम फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी गारंटी भी होती है। लाइक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो अब मॉनिटर करते हैं सीड की क्वालिटी को, सोइंग से लेकर के जो सीड मार्केटिंग होने के पहले तक जो सीड की टेस्टिंग होती है, वो सब सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है क्वालिटी की। बट आपका ग्रेन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाई seed is important in agriculture? What is the importance of? क्यों important है? क्योंकि it is a basic and vital input. If you will not use a good quality seed, maybe you are applying so many fertilizers, so many frequent irrigation you are applying, and pesticides and insecticides you are applying, but you are not using a quality seed, then other resources, other inputs will be क्या बोलते हैं उसे, वेस्ट हो जाएगा ना। वो अदर रिसोर्सेज जो भी आप यूज करो उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आपने अच्छी क्वालिटी की सीड नहीं लगाई है तो। सो सीड इज द बेसिक and vital input in agriculture upon which other resources or other inputs depends, the efficacy of other inputs depends, ठीक है। अगर अच्छे क्वालिटी का आप सीड यूज करोगे तो अदर इनपुट्स को भी आप अप्लाई करोगे तो क्रॉप की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। बट अगर आप सीड ही अच्छा नहीं यूज करोगे, आपने फील्ड को प्रिपेयर कर लिया, इरिगेशन भी दे लिया, फर्टिलाइजर भी दे लिया, उसके बाद सीड खराब वाला लगा दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपका ये जो मेहनत गया, लेबर कॉस्ट गया, इरिगेशन का पैसा गया, ये सब फर्टिलाइजर का पैसा गया, ये सब आपका वेस्ट हो जाएगा। सो सीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर में और एक बहुत ही वाइटल इनपुट है एग्रीकल्चर का। और एट द सेम टाइम इट इज द easiest and fastest means to plant multiplication. Obviously, if you have to multiply further, you will use seed only, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पेड़ को पेड़ लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है, सीड ही से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो सीड is the easiest and fastest means of plant multiplication. And obviously, you know, the germplasm conservation, आप जीन बैंक जानते हो कि जीन बैंक में बहुत सारे चीज़ें हम लोग लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पे जो सबसे ईज़ीएस्ट फॉर्म होता है, ठीक है? हर एक प्लांट स्पीशीज़ में अलग-अलग फॉर्म होते हैं स्टोर करने के। तो यहाँ पे जो सबसे वो डिपेंड करता है कंज़र्वेशन, जब पढ़ोगे तो प्लांट कंज़र्वेशन, तो उसमें एक्स सिटू कंज़र्वेशन और इन सिटू कंज़र्वेशन आता है। तो जो जर्म प्लाज़्म कंज़र्वेशन हम लोग करते हैं, उसमें सीड का जो सीड के फॉर्म में जर्म प्लाज़्म को स्टोर करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सीड ड्राई स्टेट में होता है, सीड बहुत सूखा होता है ना, ड्राई स्टेट में होता है। हार्डली इट कंटेन्स 5 to 10% मॉइस्चर कंटेंट। सो इफ we find very convenient to store the seed for longer time, ठीक है। So it is a most important form of germplasm conservation also. So see, the knowledge of producing and handling and storing high quality seed is very much important in agriculture. If you want high crop production, if you want high yield, so you must have idea about how the scientific production, seed production carry out, and then how, what is the handling and processing procedure, and then how you will store the high quality seed for longer time. So all these things you should know to get the higher crop yield. Then we see the classes of seed. So there are 5 classes of seed. The first one is nucleus seed, and then the breeder seed, foundation seed, certified seed, and then truthfully labeled seed. See, I'll discuss individually these classes of seeds. The nucleus seed, we don't have any tag. I mean, in last class, I've told that if you have given a bag of seed and I say, I will, if I ask कि ये कौन सा सीड है, you cannot tell me कि कौन सा सीड है until you will not see the tag on that bag, ठीक है। एक आपको मैंने 4 बैग दे दिए, चारों बैग में सीड रखे हुए हैं और आपको मैंने पूछ दिया कि हाँ बताओ इसमें कौन सा न्यूक्लियस सीड है, इसमें कौन सा ब्रीडर सीड है, इसमें कौन सा फाउंडेशन सीड है, इसमें कौन सा सर्टिफाइड सीड है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। आप आंसर कब कर पाओगे, जब उस बैग पे लगे टैग को देखोगे। तो
कोई भी सीड को आप आइडेंटिफाई और क्लास ऑफ सीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक टैग की रिक्वायरमेंट होती है। वो टैग को देख के ही आपको पता चल पाएगा। अगर हैंडफुल ऑफ सीड हमने आपको दे दिया और बोला पूछा कि बताओ ये कौन सी क्लास का सीड है, तो आप नहीं बता पाओगे, कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बैग जो भी कंटेनर में होता है, या तो बैग में होगा या तो कंटेनर में होगा सीड, तो उसमें एक टैग लगा होता है। उस टैग के कलर को देख करके हम पहचान पाते हैं कि हाँ, ये कौन से क्लास का सीड है। तो जो न्यूक्लियस क्लास का सीड होता है उसमें हमारा कोई टैग नहीं होता, और कोई टैग का कलर नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं होता। ये बताती हूँ मैं आगे क्यों नहीं होता है। फिर ये ब्रीडर सीड है सेकंड क्लास। तो न्यूक्लियस सीड से हम लोग ब्रीडर सीड बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रीडर सीड का जो टैग होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। सपोज ब्रीडर सीड रखा हुआ है एक बैग में और वो पैक्ड है, उसमें मार्केटिंग के पहले, बाजार में बेचने के पहले क्या लगाते हैं, उसमें टैग लगाते हैं। तो टैग देख करके ही कोई पहचान पाएगा कि ये ब्रीडर सीड है, ठीक है। और वो जो टैग का कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है। देन है आपका फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड का जो टैग का कलर होता है वो होता है व्हाइट, और सर्टिफाइड सीड का होता है अज्योर ब्लू, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू जिसको बोलते हैं। और ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है, उसका जो कलर होता है वो ओपल ग्रीन होता है, ठीक है। सो व्हेन we say individually this nucleus seed is produced from basic nucleus stock. See, कोई ब्रीडर है, कोई भी ब्रीडर इंस्टीट्यूट में होता है, या तो वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगा या फिर कोई आईसीआर इंस्टीट्यूट में। तो कोई ब्रीडिंग कर रहा है, वो ब्रीडर उसने एक वैरायटी डेवलप करी, ठीक है। वैरायटी डेवलप करा तो उसकी बड़ी स्मॉल क्वांटिटी उनके पास होती है। तो जो स्मॉल क्वांटिटी हुई ना, ब्रीडर के पास जो सीड अवेलेबल हुआ, वही आपका न्यूक्लियस सीड है, ठीक है। अब जो ब्रीडर या इंस्टीट्यूट्स जो डेवलप करा है वैरायटी को, उसी उस वैरायटी के बारे में उस ब्रीडर को ही पता होगा जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसलिए वहाँ वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, और वो बहुत ही ट्रू होता है, बहुत ही मतलब क्लीन होता है। जब आप उसकी जेनेटिक प्योरिटी की बात करें, शुद्धता की बात करें, शुद्धता, प्योरिटी, तो प्योरिटी लेवल जेनेटिक और एज़ वेल एज़ फिजिकल प्योरिटी दोनों में वो बहुत ही प्योर होता है, उसमें कोई वीड सीड नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है, और बिल्कुल सिंगल सिंगल प्लांट से सेलेक्ट करके सीड को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको बहुत ही केयरफुली देखा जाता है कि एक-एक सीड जो वैरायटी ब्रीडर ने डेवलप करी है, उससे वो सीड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम ही है कि नहीं है। अगर सिमिलर सीड नहीं है तो उसको फिर वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है क्वालिटी की, चाहे वो जेनेटिक क्वालिटी हो, चाहे वो फिजिकल क्वालिटी हो, ठीक है। और उसकी जर्मेशन परसेंटेज भी ऑब्वियसली जब एक-एक सीड हम देख रहे हैं तो वहाँ पे जर्मेशन भी अच्छी होगी, और इनर्ट मैटर भी कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए उसमें, ठीक है, न्यूक्लियस सीड में। तो न्यूक्लियस सीड बहुत प्योर होता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ब्रीडर इसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्शन इसका ब्रीडर करते हैं, ठीक है। ब्रीडर करते हैं कोई भी आईसीआर इंस्टीट्यूट अगर डेवलप करी है वैरायटी, तो वहाँ के ब्रीडर करेंगे। अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ब्रीडर डेवलप करे हैं, सो ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड ना। प्रोजेनी मीन्स मतलब हम लोग की ब्रीडर सीड को प्रोडक्शन करते हैं न्यूक्लियस सीड से, मतलब कि न्यूक्लियस सीड आपके पास है, आपने उसको फील्ड में लगाया, और उसका जो हार्वेस्ट वो हो गया आपका ब्रीडर सीड, ठीक है। तो ब्रीडर सीड जो होता है हम न्यूक्लियस सीड से बनाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा लार्ज एरिया में बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे न्यूक्लियस सीड तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो गया, और ब्रीडर सीड जो हो गया थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सपोज 10 क्विंटल सीड है, 10 क्विंटल्स का अगर कोई भी क्रॉप है, उसका मल्टीप्लिकेशन रेट 10 से 100 बनाते हैं, तो वो हो जाएगा 100 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रीडर सीड का जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट आता है। सपोज ऐसे समझो इसको कि हमारी यूनिवर्सिटी की कोई वैरायटी है डेवलप की हुई, ठीक है। तो वो बिहार के लिए डेवलप की हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन से डिमांड आता है कि आप इस वैरायटी का इतना
सीड प्रोडक्शन करो। तो जब वो डिमांड आता है हमारी यूनिवर्सिटी को, वो डिमांड रिसीव होता है, तो जितना डिमांड रिसीव होता है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे फिर उस वैरायटी का जिसका डिमांड आता है डीएससी से, उसका हम लोग ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में ब्रीडर सीड प्रोडक्शन ऐसे ही किया जाता है, इंडेंट के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन होता है, हर एक आईसीआर इंस्टीट्यूट हो या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे क्लोजली मॉनिटर किया जाता है एक मॉनिटरिंग टीम से। तो ब्रीडर सीड को मॉनिटर करने के लिए क्या होती है, एक मॉनिटरिंग टीम होती है। उस मॉनिटरिंग टीम में ब्रीडर होता है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेशनल और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर आईसीआर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये सारे मिल करके एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाती है, और वो मॉनिटरिंग टीम विजिट करती है, मॉनिटर करती है फील्ड में जा करके कि हाँ ये ब्रीडर सीड अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी की बात करें, तो ये भी 100% होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई मिक्सचर नहीं चाहते हैं। ब्रीडर सीड प्योर होगा तभी आगे आपका जो जनरेशन होगा फाउंडेशन और सर्टिफाइड क्लास का वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी हम जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टैग हमने दिखा रखा है, जैसे आपको मैंने बोला ना कि ब्रीडर सीड का टैग गोल्डन येलो होता है, तो ये ब्रीडर सीड का टैग है, ठीक है। बोरे पे, कोई भी बोरे पे, सीड बैग पे आपको यही टैग लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टैग में क्या-क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ये क्रॉप का नाम होता है, वैरायटी का नाम होता है, क्लास ऑफ सीड होता है, मतलब कि कौन-सा क्लास है, ब्रीडर सीड है, फिर डेट ऑफ टेस्ट है, प्योर सीड है। ये दीज़ थिंग्स आई विल डिस्कस इन लेटर क्लास, सो यू विल कम टू नो वेरी क्लियरली, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो ब्रीडर सीड का जो टैग होता है, जो इंस्टीट्यूट ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कर रही होती है, वही ये ब्रीडर सीड इश्यू करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो डायरेक्टर सीड एंड फार्म लिखा हुआ है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर लिखा हुआ है ना। ये मूंग का है, और ये हमारा जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर सीड एंड फार्म है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन हो रहा है, उसी का ये टैग है, ठीक है। तो ब्रीडर सीड जो टैग होता है वो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एससीयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इशू करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड किससे बनाया जाता है? इट इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। जब आप ब्रीडर सीड को फील्ड में लगाओगे और उससे जो सीड हार्वेस्ट करोगे, दैट विल बी your foundation seed, ठीक है। So foundation seed is basically produced by recognized seed producing agencies, any public or private sectors, like हमारा यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन में, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में। तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर सकता है। और सी हम लोग जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन चेन में जाते हैं, लाइक न्यूक्लियस से छोटा स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद ब्रीडर थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे प्रोडक्शन किया, और जब सर्टिफाइड क्लास पे जाते हैं तो सर्टिफाइड क्लास का जो सीड होगा वो और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन